یہ ہے افتخار احمد سندھو صاحب کی یادداشتوں کی تیسری قسط، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب پرویز مشرف سے ملاقات کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے ہمیں چائے پلائی ان کے کپڑے بھی بہت صاف ستھرے اور چمکدار تھے۔ باہر طور بیٹھا رہا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد میں نے ان کے عملے سے پوچھا، جنرل صاحب ابھی فارغ نہیں ہوئے؟ جواب ملا نہیں، مگر جب مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے پھر پوچھا کہ جنرل صاحب ابھی بھی فارغ نہیں ہوئے، جس پر مجھے جواب ملا، وہ تو فارغ ہو کر چلے گئے ہیں۔ یہ جنرل پرویز مشرف سے میرا پہلا ٹاکرا تھا، جس سے میں بہت دل برداشتہ ہوا۔ یہ غالباً 2002 کا واقعہ ہے۔ اس صورتحال میں مجھے چودھری شجاعت اور پرویز الہی کا واقعہ یاد آ گیا، جو نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کے بعد جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کے لیے بڑے بے چین تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جنرل پرویز مشرف ان کے سیاسی کردار سے زیادہ خوش نہیں ہیں، مگر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے ان سے ملاقات کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں کی بار بار درخواستوں کے باوجود پرویز مشرف انہیں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر اس وقت کے سیکرٹری خارجہ طارق عزیز نے ان سے پرویز مشرف کی ملاقات کا ایک طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ راولپنڈی کے پی سی ہوٹل میں کسی بڑے آدمی کے بچے کی شادی تھی، جہاں جنرل مشرف نے بھی آنا تھا۔ سیکرٹری خارجہ طارق عزیز نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو بھی چپکے سے وہاں بلوا لیا اور دونوں کو عین اسی جگہ بٹھا دیا جہاں سے پرویز مشرف نے گزر کر جانا تھا۔ اس وقت ان دونوں حضرات کی بے چین صورتیں دیکھنے والی تھی، جو ایک سائل کی طرح سے جنرل مشرف کے دیدار اور ملاقات کے شرف کے لیے بے چین بیٹھے تھے۔ باہر طور جو ہی فنکشن ختم ہوا اور پرویز مشرف اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگے تو یہ دونوں حضرات ان کے سامنے آ گیا اور مجبوراً پرویز مشرف کو ان سے ملنا پڑا اور ان کے اصرار پر انہیں ملاقات کا وقت بھی دے دیا۔ تاہم پرویز مشرف نے انہیں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جنرل امجد سے جا کر مل لیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے جنرل امجد کو کبھی فون کر کے یہ نہیں کہا کہ وہ ان دونوں سے ملنے کا وقت دے دیں یا ان کی بات غور سے سنیں۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود جنرل امجد نے کبھی انہیں ملنے کا وقت نہیں دیا۔ افتخار احمد سندھو کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو بہت انجوائے کرتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کو جنرل پرویز مشرف نے ملاقات کا موقع نہیں دیا، تو اگر ہمیں وہ ایک کمرے میں بٹھا کر اور اچھی سی چائے پلوا کر چپکے سے نکل گئے تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں حضرات کو تو جنرل پرویز مشرف نے کھڑے کھڑے بلکہ چلتے چلتے ٹرخا دیا تھا، ہماری تو پھر بھی انہوں نے عزت کی اور ایک صاف ستھرے کمرے میں بٹھا کر اچھی سی چائے پلوا کر میزبانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ 2002 کے عرصے میں اپنے طور پر عوام کی جتنی خدمت کر سکتا تھا وہ میں نے کی، پوری نیت اور خلوص سے، مگر ان اچھے کاموں کی راہ میں بھی روڑے اٹکانے والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک بار جب میں نے حکومت تبدیل ہونے کے بعد ٹی سی ایف والوں کو سکول بنوا کر دیا تو میری اس خدمت کی پاداش میں میرے خلاف انکوائری لگا دی گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ میں نے ٹی سی ایف والوں سے پیسے کھائے ہیں۔ میں نے اعتراض کرنے والی اتھارٹی سے کہا، آپ ٹی سی ایف والوں کو خط لے کر معلوم کریں کہ میں نے کتنے پیسے کھائے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پورے پاکستان میں 400 سکول بنائے ہیں اور کسی سکول کی بلڈنگ بنانے کے لیے ہم نے جو جگہ لی اس کے پیسے ہم دیتے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود 2-3 اخبارات میں میرے خلاف بہت شور اور واویلا مچایا گیا۔ مجھے اخباری رپورٹروں نے بھی بلیک میل کیا اور یہ پیشکش کی کہ اگر ہمیں کچھ پیسے دے دیے جائیں تو ہم بیٹھ جائیں گے، مگر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے خلاف جتنا لکھنا ہے لکھ لیں۔ اس دور میں اپنے حلقے میں ایک اور کام کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے کمیشن دینا بند کر دیا۔ ایس ڈی او سے لے کر ایکس سی این اور اوورسیز تک کو کمیشن دیا جاتا تھا۔ اس طرح 30% فنڈز تو اس کمیشن پر چلے جاتے ہیں۔ اس فنڈ میں سے 10 سے 15% ایم پی اے کمیشن لے جاتے ہیں، 10 سے 15% بیوروکریٹ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی 30 یا 40% فنڈ بچتا ہے جو وہ مشکل خرچ ہوتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے ہمارے ترقیاتی فنڈز کا۔ افتخار احمد سندھو اپنی کتاب افتخار نامہ میں مزید انکشاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، مگر میرا اختیار جو یونین کونسل پر تھا وہاں میں نے یہ فنڈ بند کر دیا جس پر میرے آفیسرز نے
काम करना ही छोड़ दिया। उनमें 2 ओवरसीज़ एक्सियन और SDO शामिल थे, जिस पर मुझे उस वक्त के टाउन नाज़िम शेख यूनुस ने बुलाकर कहा, ये तो आपको देना पड़ेगा, आप ये फ़ंड किसी कीमत पर भी नहीं रोक सकते, वगरना आपके साथ कोई भी काम नहीं करेगा। बिलाखिर मुझे वो फ़ंड दूसरों से कुछ कम करके देना ही पड़ा। इन अदारों के बीच में रहकर मैंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ सीखा, आप बखूबी समझ सकते हैं। इफ्तिखार सिंधु मज़ीद कहते हैं कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उसकी अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ये गर्मी के मौसम में भी 3 पीस पहन कर आती है। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए अपने कमरों में मुस्तकिल एयर कंडीशनर चलाते हैं। अगर ये मौसम के मुताबिक ही ढंग के कपड़े पहने तो पाकिस्तान में बिजली यकीनन सस्ती हो सकती है। इसके अलावा ये लोग ऐसी गाड़ियों का जो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं उसका जिक्र ही क्या। सरकारी अदारों की लाखों गाड़ियों की मेंटेनेंस का सिलसिला साल भर जारी रहता है। इस तरह की अय्याशियों और फजूल खर्चियों से उन्होंने पाकिस्तानी मुईशत का जो बेड़ा गर्क किया है उस पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, जो पाकिस्तानी ख़जाने पर बहुत बड़ा बोझ है। उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली सरकारी ऐसी गाड़ियों पर जितना पेट्रोल खर्च होता है, अगर इसका मुवाजना दूसरे ममालिक से करें तो हमारी ब्यूरोक्रेसी फजूल खर्ची में विक्ट्री स्टैंड पर नज़र आए। हर सरकारी अफसर के पास 3 से 4 गाड़ियाँ होती हैं, उनका आयल तब्दील होता है और ना ही टायर तब्दील होते हैं। जब ये गाड़ियाँ ज़रा भी ख़राब होती हैं तो नई गाड़ी की डिमांड लेकर भिजवा देते हैं, जो उन्हें मिल भी जाती है। पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्टेड गाड़ियाँ दरामद करने वाले ममालिक में शायद अगर पहले नंबर पर नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर पर ज़रूर होगा। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ 6 माह के दौरान सरकारी अफसरों के लिए जो गाड़ियाँ दरामद की उन पर $12 बिलियन खर्च हुए। 12 अरब डॉलर खर्च हुए, रुपए नहीं, डॉलर खर्च हुए, जिसमें कीमती गाड़ियाँ और उनके कीमती पुर्जा जात शामिल हैं। इस तरह अरकान असम्बली और वज़रा के जो नित नई गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं वो अलग हैं। पिछले दिनों पंजाब की निगरान हुकूमत ने वज़रा के लिए जिन नई गाड़ियों की खरीदारी की समरी मंजूर की थी उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, मगर सुना है कि इसके बावजूद 3 करोड़ 55 लाख की गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी गई। अगर पेट्रोल की बात करें तो गुज़श्ता 4 वर्षों में 230 मिलियन रुपए का पेट्रोल वफाकी काबीना के अरकान को गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, जबकि 125 मिलियन रुपए मेंटेनेंस वगैरह पर खर्च हुए। जब गरीब मुल्क के अशराफिया की अय्याशियों का ये आलम होगा, उसके बाद IMF के सामने हमारा दोनों हाथ बांधकर सूदी कर्ज मांगना तो बनता है। इस तरह हमारे जो सेक्रेटरी साहिबान हैं उनको मेरिट पर नहीं लगाया जाता। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सेक्रेटरी मादनियात लगाया जाता है तो तीसरे दिन वो सेक्रेटरी सेहत बनकर हेल्थ डिपार्टमेंट में चला जाता है। अब सवाल ये है कि जिसे मादनियात का सेक्रेटरी लगाया गया था वो महकमा सेहत में जाकर कौन सा तीर चला लेगा। फिर इस सेक्रेटरी को कुछ अरसा बाद सेक्रेटरी हेल्थ और अगर सरकार मुनासिब समझते हुए उसके बाद उसे सेक्रेटरी बल्दियात के तौर पर भी आजमा सकती है, या सेक्रेटरी सेटलमेंट के तौर पर भी उसकी खिदमत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि इसके पास ऐसी कौन सी करिश्माती ताकत है जिसके पास हर महकमे की क्वालिटी होती है। अभी बात ब्यूरोक्रेसी की हो रही थी, जैसा कि मैंने एक सेक्रेटरी की मिसाल दी जिसे हर फन मौला समझते हुए हर महकमे का चार्ज दिया जाता है। उसी तरह मुझे एक बंदे का वाक़या याद आ गया जिसमें ये क्वालिटी थी, वो शराब पीकर बता देता था कि किस कंपनी की शराब है। लोग उससे तंग आ गए। उन्होंने ये कहा कि ये 2-3 कंपनियों की शराबें मिलाकर एक बोतल तैयार की और उसके पास ले आए और उससे कहा कि बताओ ये किस कंपनी की शराब है। उस शख्स ने शराब के 2-3 घूंट लिए और शराब लाने वाले से बोला, यारो बात तो पक्की है कि मैं आपको नहीं बता सका, मगर मेरी तरफ से कंपनी वालों को जाकर बता दो कि ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। हस्बहाल 2 किताबों का तज़किरा यहाँ नागुज़ीर है। हमारे मशहूर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने इमरान खान और जनरल बाजवा की एक पेज पर होने की गिरदान पर एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था ये कंपनी नहीं चलेगी। इस किताब के काबिल एतराज़ टाइटल की वजह से इस पर इमरान खान की हुकूमत में पाबंदी लग गई। बाद में उसका टाइटल तब्दील किया गया। उसके कुछ अरसा बाद सीनियर सहाफ़ी नदीम ओपल ने भी किताब लिख दी जिसका उन्वान था कंपनी तो यही चलेगी, जिस पर हसन निसार ने बाकायदा एक कॉलम भी लिखा, मगर उन्होंने तज्जिया ये किया कि कंपनी कोई भी नहीं चलती क्योंकि ये कंपनियां नहीं छोटी छोटी
दुकानें हैं, झापड़ियाँ हैं, ये छापे माल हैं। हसन निसार ने जो कहा था वो साबित हो गया और कोई भी कंपनी ना चल सकी। बात सेक्रेटरी के लोगों की और ब्यूरोक्रेट्स की हो रही थी। ऐसे में मुझे कैप्टन मोहब्बत खान का वाक़या याद आ गया। इफ्तिखार अहमद सिंधु ये वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि जिन्हें 70 के अशरे में पंजाब मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन का सेक्रेटरी लगाया गया था, उससे पहले मौसूल गुजरांवाले में बड़े नामी गिरामी जज हुआ करते थे और उनकी सख्ती पूरे गुजरांवाला में मशहूर थी। एक रोज़ा मोहब्बत खान ज़रा मूड में थे तो उन्होंने अपना एक दौर का वाक़या सुनाया जब वो सख्त गिर किस्म के जज थे। ये वाक़या मैं उन्हीं के अल्फाज में बयान करूँगा। एक बार मेरे इलाके में किसी कॉलेज के लड़के ने पड़ोस की किसी लड़की से ज़्यादती की। लड़के की गिरफ्तारी के बाद ज़मानत हो गई, मगर पेशियों का सिलसिला जारी था। एक रोज़ जब वो कॉलेज के दोस्तों के साथ मेरी अदालत में पेश होने आ रहा था तो उसके दोस्तों ने कहा कि आज तुम्हारी खैर नहीं, आज तो मोहब्बत खान तुम्हें लटका देगा। जिस पर लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, मोहब्बत खान तो मुझे बाद में लटकाएगा, मगर आज मैं उसके सामने ऐसा बयान दूंगा कि मोहब्बत खान के भी पसीने छूट जाएं। बहरहाल वो लड़का पेशी के मौके पर आया और उसने बयान देना शुरू किया तो कहने लगा, जनाब जज साहब, मैं अपने मकान की बालकनी पर स्टडी किया करता था और पड़ोसियों की लड़की आकर मुझे तंग किया करती थी, मगर एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में था तो वो लड़की कमरे में आ गई और खुद ही अंदर से कुंडी लगा ली। जनाब जज साहब, जब उस लड़की ने अपने जलवे दिखाए तो मैं भी पागल हो गया और कहा, मोहब्बत खान जावे ठट्ठे खूह विच, आज मैं इनू छड़ना नहीं। इस लड़के का बयान सुनकर मेरे पसीने, जज साहब कहते हैं, कि छूट गए। लड़के का वकील तो अगली तारीख लेकर चला गया, मगर मुझे बेचैन कर गया। मैंने किसी न किसी तरह उस कॉलेज के लड़के से रब्ता किया और कहा कि मुझे वो लड़की तो दिखाओ जिसके लिए तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली दी। किसी न किसी तरह जब मुझे वो लड़की दिखाई गई तो वो वाकई इतनी खूबसूरत थी, शायद मधुबाला से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़की को देखकर मैंने उस कॉलेज के लड़के से कहा, ओए बेईमाना, एदे वास्ते तो गालियाँ और कढ़ लेंदा, वो भी घट सन। ये वाक़या बयान करने का मकसद ये था कि हमारे लोग इंसाफ के मनसब पर बैठे हुए हैं, इंसाफ की कुर्सी पर, जिनके अपने कोई जज्बात और कोई राय नहीं होती। वो भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि आंखों के सामने इंसाफ की कुर्सी का अक्स भी धुंधलाने लगता है। अब मैं आता हूँ एक बार फिर असल मौजू की तरफ। 2008 में जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि MPA का टिकट लेकर इलेक्शन में खड़े हो जाएं। इन लोगों ने नून लीग के टिकट नहीं लिए थे, मगर जिस हल्के के लिए टिकट था वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। मुझे कहा गया कि आपको 40 लाख में टिकट मिल जाएगा। तो क्या इफ्तिखार सिंधु ने 40 लाख में सौदा किया या नहीं किया, ये बताएंगे हम आपको अगली एपिसोड में।